Harvinder ma'am, please allow me the screen sharing. Harvinder ma'am, please allow me screen sharing ma'am. एक्चुअली मैंने दोनों पहले आप ही कर लिए थे. ठीक ठीक, थैंक यू. हाँ जी बेटे, थैंक यू मैम. हाँ जी बेटे, तो first of all, once again I welcome you all, because yesterday we faced a lot of technical problem, so we could not talk the way we wanted. But anyhow, coming aside, yesterday as I told you that we are going to start this chapter of history, and the name of the chapter is Nationalism in India. Okay? Yesterday we have discussed a few things. So I am firstly going to recapitulate what did we do yesterday. Then we will start this explanation of today's part. Okay? So yesterday we have discussed that just like India, other countries were also the colonies of Great Britain in Asia. One of them prominent colonies was Vietnam. So in India, just like Vietnam, Indian people also started working anti-British, started doing anti-British activities, anti-colonial activities, and the only target, they were having their various reasons for starting all these activities, but their main aim was to remove the British rule from India. So there was a common point of unity, common integration was there among all the people, and that reason of that common integration, that they all wanted to have freedom from British rule, colonial rule. Okay? Then we have discussed that in the First World War that took place between the Central Powers and Allied Powers. Central Powers में कौन सी powers थी? I hope you remember. There was Austria-Hungary, there was Germany and Turkey. These were called Central Powers. They were on one side. Theirs was one group. And against these, another group was there. They were known as Allied Powers. And which countries were mainly there? There were Great Britain, Russia, and then Japan was there, Italy was there, and later on America was also there with them. So there was fight between these two groups, and throughout the world, whichsoever country favored these countries, they sided with that group, and mainly war was between these groups. Okay? So in this group, when this fight was going on, World War was going on during 1914 to 1919, since England was part of that, Great Britain was part of that, so they needed a lot of money. And what did they do to get that money to finance these expenses? They started exploiting the colonies more exploitatively. And India was one of their main targets, main source of their finance. So they imposed many taxes here. As a result of war, prices of day-to-day commodities, consumer goods, that also rose up. And then the British, they insisted people from village areas to become soldiers in the British Army. Although it was called, at that time it was called British Indian Army, कि इंग्लैंड के कंट्रोल वाली, ब्रिटेन के कंट्रोल वाली इंडियन आर्मी, जिसमें इंडियन लोग ही ज़्यादा होते थे, सोल्जर्स होते थे. तो ये सारा कुछ हुआ. देन वी रेड अबाउट द एडवेंट ऑफ कमिंग ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ही केम हियर इन इंडिया इन 1915. Before that, there was no role of Mahatma Gandhi in our Indian politics or Indian freedom struggle. So 1915 में when he came here, so then he adopted a new practice that was called Satyagraha. So I told you yesterday what was the meaning of Satyagraha. Satyagraha means the war to be fought with the help of truth, with the help of Satya. Satya means truth. Means if our oppressor is oppressing us, oppressor मतलब जो हमारे ऊपर हमारे साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हार्श ट्रीटमेंट हमें दे रहा है, सो दैट ऑप्रेसर ही नीड्स टू बी टैकल्ड विद अवर ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस. This type of behavior, that is called satyagraha. मतलब we don't have to retaliate with violence, and we just have to show our non-violent attitude. तो इस तरह का जो भी उनका ट्रीटमेंट है, मतलब जो भी उन्होंने अपना स्टार्ट किया प्रोग्राम, दैट वाज कॉल्ड सत्याग्रह. तो फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ दैट सत्याग्रह, ही इनिशिएटेड दैट प्रैक्टिस इन विच प्लेस? This was Champaran in Bihar. And then
1916 में चंपारण इन बिहार, मतलब महात्मा गांधी वेंट देयर फॉर द हेल्प ऑफ इंडिगो farmers, those who were planting, cultivating this indigo. Then in 1917 he went to Kheda, that was in Gujarat, and then he went to Ahmedabad to help the, in 1918 to help the cotton mill workers. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था. Now we have to, today we have to start from here, the Rowlatt Act. So I want all of you to have your books also along with you, because it's not possible to read one by one word from the screen. So you are requested to have a look at your books also. Okay, I hope pencils are also there with you. So Rowlatt Act. So in this what happened? When Mahatma Gandhi took success in his previous satyagraha movements, so he was quite delighted in a way. Means when one's practice gets success, so every person feels happy. ठीक है, तो महात्मा गांधी was encouraged with that success of that satyagraha. Means success in the sense कि भी more and more people were following him. They were listening to his lectures. They were getting inspired by Mahatma Gandhi. मतलब he was getting a huge fan following. जैसे कोई पॉपुलर होता है ना धीरे धीरे, तो ऐसे ही महात्मा गांधी वाज बिकमिंग पॉपुलर इन द इंडियन सिनेरियो. तो ही गॉट वेरी हैप्पी विद दैट. तो उसके बाद क्या हुआ, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया. एक्ट मतलब कानून पास किया. अब वो कानून क्या था, दैट वाज पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इंपीरियल लेजिस्लेटिव मतलब इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कानून बनाया, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये एक्ट बनाया. उसका नाम था रॉलेट एक्ट. तो व्हाट वाज द रॉलेट, मिस्टर रॉलेट वाज वन ऑफ द मेंबर्स हु प्रपोज्ड दिस बिल. तो उनके नाम के ऊपर ही वो रॉलेट एक्ट बन गया. अदरवाइज कोई चीज़ का नाम नहीं है रॉलेट, किसी पर्सन का नाम था, तो उनके नाम के ऊपर. तो अब इस एक्ट में क्या था, एंड महात्मा गांधी वांटेड टू स्पीक अगेंस्ट दिस एक्ट, इसके अगेंस्ट जाना चाहते थे. तो भी पहले फर्स्टली वी शुड नो कि भी इस एक्ट में क्या था जिसके अगेंस्ट जाना चाहते थे. तो रॉलेट एक्ट में दो प्रोविजन किए गए थे विच वर वेरी डिस्करेजिंग फॉर इंडियन पीपल. एक तो था, यू प्लीज सी इन योर फर्स्ट पैरा ऑफ दिस रॉलेट एक्ट, इन बिटवीन द लाइन्स इट इज गिवन, this act gave the government enormous powers to repress political activities. repress होता है to restrain, to restrict, to deprive, किसी को कोई काम करने से रोकना. जब हम रोकते हैं किसी को ज़बरदस्ती से, तो दैट फॉर दैट वी यूज़ द वर्ड रिप्रेस. ठीक है, ज़बरदस्ती करना. तो क्योंकि एट दैट टाइम इंडियन पीपल वर गेटिंग यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, दे वर गेटिंग बोल्डन्ड बाय दिस वेरियस लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी और अदरवाइज ऑल्सो अदर लीडर्स ऑल्सो, कि भाई नाउ वी हैव टू evict these British people from India. इनको बाहर निकालना है, इनको यहाँ से निकालना है हमने. तो people were getting this type of information, knowledge, or they were getting encouraged for all these activities. Political activities में they were participating. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ठीक नहीं लग रहा था भी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पीपल है वो एजुकेटेड हो रहे हैं, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो उनकी उन पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन थी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज़ में जो इंडियन लोग पार्टिसिपेट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे या करने की एफर्ट करते थे, तो इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट दोज पीपल उन्होंने ये एक्ट पास किया. अब हाउ टू रिस्ट्रिक्ट, कैसे रोकना था उनको, तो क्या किया उन्होंने एक और प्रोविजन किया, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. डिटेंशन होता है जेल में डाल देना, टू कीप इन प्रिजन कर देना. कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, दे ब्रिटिश गवर्नमेंट दे टुक पावर विद द हेल्प ऑफ दिस रॉलेट एक्ट, कि भी नाउ दोज पॉलिटिकल पीपल, इंडियन पीपल, दे कुड बी सेंट टू जेल, दे कैन बी इम्प्रिजन, दे कुड बी इम्प्रिजन फॉर 2 years, एंड दे वुड नॉट बी प्रोवाइडेड एनी ट्रायल होते हैं जैसे अब आजकल आप देखते हो ना, जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं अपनी बात को रखने के लिए. तो उनको ट्रायल का मतलब मुकदमा भी नहीं लड़ सकते थे. मीन्स ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको चाहे उठा के जेल में डाल सकती थी, और उस पर्सन को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए भी उसको कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी. तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि भाई कोई भी उनके अगेंस्ट खड़ा होता था उसको उठा के जेल में डाल सकते थे. तो नाउ दिस वाज ए वेरी रिप्रेसिव मेयर, लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. तो नाउ महात्मा गांधी वांटेड टू स्टार्ट सम दिस एजिटेशन अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट वो अपना मतलब ही वांटेड टू स्टार्ट ए सत्याग्रह अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट. तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया हड़ताल के लिए, स्ट्राइक के लिए, ये सारा कुछ किया उन्होंने. ठीक है, and he wanted, Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against this unjust law.
सिविल डिसोबीडियंस होता है गवर्नमेंट के कानूनों को ना मानना, उनको ब्रेक करना, उनके साथ कोऑपरेट ना करना, ये सारा कुछ। तो ही वांटेड दिस नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ, ठीक है। कि भी अनजस्ट का मतलब जो सही नहीं है, विच इज़ नॉट जस्ट, जस्ट वर्ड से बनता है ना जस्टिस। तो जो ठीक नहीं है चीज़, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने के लिए महात्मा गांधी वांटेड टू स्टार्ट ए सत्याग्रह विद द हेल्प ऑफ द पीपल, ठीक। तो अब जब उन्होंने ये सारा कुछ किया, ही गेव दिस टाइप ऑफ कॉल, तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड this coming behind him. They started various types of rallies, protest करने start कर दिए, strikes करनी start कर दी. You can read in the para कि रेलवे स्टेशंस को बंद कर दिया या और वट एवर वेज वर पॉसिबल, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग दोज वेज, तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह की कॉल को लेकर के, ठीक है। तो उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ, और ये जो एक और प्रोमिनेंट थिंग इज देयर अबाउट दिस लॉ, अबाउट दिस स्ट्राइक और सत्याग्रह अगेंस्ट टॉयलेट एक्ट, कि भी दिस वाज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू अर्बन एरियाज। विलेज एरियाज में this call of Mahatma Gandhi for satyagraha against this act, this call did not get any popularity in the rural parts. मतलब गांव में जो लोग रहते थे उनको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, या उनको इतना ज़्यादा इसके लिए वो कोई इतना इंस्पिरेशन नहीं थी, या उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वी कैन से दे डिड नॉट हैव मच इंटरेस्ट। बट जो सिटी एरियाज थे, अर्बन एरियाज थे, शहरी एरियाज थे, वहाँ पे लोगों ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक विद वन थिंग विच वी शुड रिमेंबर कि कोई भी जो होता है, स्ट्रगल होता है या सत्याग्रह होता है या कोई भी एजिटेशन होता है, दैट कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इफ मोर एंड मोर पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कोई चीज़ कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ इसका, बिकॉज इट वॉज लिमिटेड टू अर्बन पार्ट्स ओनली, ठीक। तो फिर हुआ क्या, एक यहाँ पे वन पॉइंट इज गिवन रिलेटेड टू अमृतसर। तो अमृतसर में पुलिस जो थी, एक पीसफुल प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन, मतलब आम जैसे लोग चलते हैं पीसफुली विदाउट डूइंग एनी वायलेंट एक्टिविटीज़, कुछ नहीं, चुपचाप अपना रोड पे चल रहे हैं। तो उस प्रोसेशन के ऊपर ब्रिटिश पुलिस ने स्टार्ट क्या कर दिया, फायर्ड अपॉन, गोली चला दी। फायर्ड अपॉन का मतलब गोली चला दी, ठीक है। हाँ जी। तो उसका फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट के तौर पे वहाँ पे वाइड स्प्रेड अटैक्स हो गए, पीपल ऑल्सो बिकेम वायलेंट। मतलब पहले तो नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर गेटिंग फायर फ्रॉम द ब्रिटिश पुलिस साइड, तो लोगों को भी लगा कि हम भी कुछ वायलेंट तरीका अपनाएं। तो वो सारा कुछ जब हुआ वहाँ पे, मतलब इस तरह से राइट्स एक तरह से होने स्टार्ट हो गए, फाइटिंग से स्टार्ट हो गई। तो ब्रिटिश पुलिस ने वहाँ पे क्या कर दिया, दे इम्पोज्ड मार्शल अमृतसर में। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, मार्शल लॉ का मीनिंग होता है मिलिट्री लॉ। मतलब व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया, कोई सिटी है, कोई जगह है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट प्लेस इज गिवन टू द मिलिट्री, कि भी आप यहाँ पे मैनेज करो। आम पुलिस का काम नहीं है, मतलब जो काम तो पुलिस ही करेगी, बट वो जो रूल्स हैं, कानून है, वो मिलिट्री वाले इम्प्लीमेंट होंगे। तो मिलिट्री के रूल्स का मतलब क्या होता है कि इफ एनीबडी गोज अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द मिलिट्री, तो ही कैन बी शॉट अपॉन, उसको मारा जा सकता है, उसको किल किया जा सकता है। तो इस टाइप के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो इस तरह का मार्शल लॉ लगा दिया, और वहाँ पे एक थे जनरल डायर, ठीक है। तो जनरल डायर की ड्यूटी लगा दी कि आपने इसको, अमृतसर जो एरिया था, तो उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑफिसर थे वहाँ पे, ही वॉज जनरल डायर। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक आपने बड़ा फेमस इंसिडेंट आपने पहले भी यू वुड हैव रेड इन 8th क्लास ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो यू वुड बी नोइंग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो प्लेस है इन अमृतसर, तो वहाँ पे सम पीपल दे गॉट टुगेदर, कुछ वैसे ही आए थे घूमने के लिए, कुछ वैसे ही अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, कि वे अंदर बैठे हुए हैं, अपना चुपचाप बैठ के अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। कुछ एक ऑन दैट डे इट वाज बैसाखी डे 13 अप्रैल, तो वहाँ पे वो बैसाखी के लिए, उससे रिलेटेड अपना फेयर के लिए आए हुए थे। तो मतलब मैनी पीपल वर देयर इन दैट जलियांवाला बाग। तो फिर जनरल डायर ने, उन्होंने क्या किया, उस एरिया का जो एंट्री पॉइंट था उसको क्लोज कर दिया। मतलब पीपल दे डिड नॉट गेट एनी एग्जिट फ्रॉम दैट बाग, एक ही वहाँ पे गेट था, तो उसको क्लोज करके अंदर जो लोग थे उनको मार दिया। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बहुत कोई वेल में वहाँ पे जंप कर दिया, एक वेल था वहाँ पे, मतलब बड़ा इस तरह से किलिंग्स हुई। मैसेकर, दैट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर होते हैं किलिंग्स एट ए लार्ज स्केल। तो जनरल डायर डिड दैट। तो उसका पर्पस क्या था, लोगों को डराना, कि इतने लोगों की डेथ होगी तो बाकी के लोग उसको देख के अपने आप ही सहम जाएंगे, अपने आप ही डर जाएंगे, और दे विल नॉट गेट द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि दूसरों को देख के कि ऐसा हो रहा है तो खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब उनका जो एक मोराल है दैट विल कम डाउन।
तो इस तरह से उन्होंने किया। फिर और जो थे, जो बाकी के लोग बाहर आउटसाइड जलियांवाला बाग जो सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फिर उनके साथ भी बड़ा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया, हार्श ट्रीटमेंट किया, उनको फ्लॉग किया। फ्लॉग होता है हंटर से मारा उनको रोड्स के ऊपर। दे वर आस्क्ड टू रब देयर नोजेस, दे वर आस्क्ड टू सैल्यूट द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश फोर्सेस। तो एक तरह से द इंटेंशन ऑफ दीज ब्रिटिश पीपल ऑफिसर्स, दैट इंटेंशन वाज टू ह्यूमिलेट इंडियन पीपल। किसी को कहे कि आप रब करो नोज को, तो उसका मतलब क्या हुआ रोड के ऊपर? उसका मतलब है कि अगले को अंदर तक उसको इन ह्यूमन ट्रीटमेंट देके उसको नीचा दिखाना। दिस वाज द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश पीपल कि ऐसे ये अपने आप को इंफीरियर फील करेंगे, अपने आप को नीचा फील करेंगे, तो उससे इनका मोरल डाउन होगा, तो दे विल नॉट हैव द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। मेन पर्पज वाज दिस। ठीक है, जस्ट ए मिनट, लेट मी हैव द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज वी आर डूइंग दिस पार्ट। हाँ जी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? देन ब्रूटल रिप्रेशन वाज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रूटल रिप्रेशन मतलब बड़ा क्रूअल तरीके से सारे जो ये हो रहा था सत्याग्रह, दैट वाज अबेंडेंड बाय द ब्रिटिश, उसको रोक दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर? नाउ आफ्टर दिस, नाउ महात्मा गांधी जो थे, ही वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ही वांटेड टू स्टार्ट सम वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल, कि कुछ करना चाहते थे, बट ही वाज नॉट गेटिंग द आइडिया कि भी क्या किया जाए कि जिसमें मासेस ऑफ द कंट्री वुड बी इन्वॉल्व, सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, सारे लोगों का साथ भी हो जाए और सारे लोग इकट्ठे मिलके काम करें। ही वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट। तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा था उनको, तो फिर ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपन, 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिनिश्ड हुआ, तो उस वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड पावर्स थी, दे गॉट विक्ट्री। सीधे सीधे वर्ड्स में मैं आपको जो सिंपल सा बता देती हूँ, एलाइड पावर्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लैंड जीत गया। ठीक है, उस वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब जब इंग्लैंड जीत गया और दूसरी तरफ एक कंट्री था, कल मैंने आपको बताया, दैट वाज टर्की। टर्की कंट्री हार गया, जिसको हिंदी में दैट वी कॉल तुर्की ऑल्सो, मैनी पीपल कॉल तुर्की ऑल्सो, और यहाँ टर्की। तो टर्की कंट्री जब हार गया, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, वहाँ पे टर्की में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। आपने शायद नाम सुना होगा, ऑटोमन एम्पायर। एक जैसे मुगल एम्पायर है या कोई गुप्ता एम्पायर थी, मौर्यन एम्पायर थी, तो ऐसे ही टर्की में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। अब वो जो ऑटोमन एम्पायर थी, वो एक खास तरह की एम्पायर वी कैन से। वो उसका जो हेड होता था, जो किंग होता था, ही वॉज कॉल्ड खलीफा। ठीक है, अब खलीफा का मतलब क्या हुआ? खलीफा वर्ड यूज किया जाता है फॉर दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स, हु हेड्स द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं, उनका पॉलिटिकल एज वेल एज जो स्पिरिचुअल हेड है, दैट पर्सन इज कॉल्ड खलीफा। तो जो वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का जो भी रूलर होता था टाइम टू टाइम, उसको खलीफा का डेजिग्नेशन दिया जाता था, कि उसको खलीफा कहा जाता था। वो मीन्स वट एवर वॉज सेड बाय दैट खलीफा, दैट वॉज टू बी फॉलोड बाय ऑल द मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे रहते कहीं भी हों, किसी भी कंट्री में रहते हो, बट वो उसको मानते थे। तो अब क्या हुआ कि जब 1919 में इंग्लैंड जीत गया, तो वो ऑटोमन एम्पायर गॉट डिसमेंटल्ड, ख़त्म हो गया, हरा दिया उसको। तो उस समय वो खलीफा जब हार गया, तो उसके ऊपर बड़ी हार्श ट्रीटी की गई। हार्श ट्रीटी का मतलब ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, और उस जो पर्सन था, वो खलीफा था ऑटोमन एम्पायर का, मीन्स टर्की का रूलर था, तो उसको अपने ब्रिटेन ने अपनी उसके ऊपर कंडीशंस इम्पोज की, अपनी शर्तें इम्पोज कर दी। मतलब उसको बड़ा, उसके साथ वी कैन से बड़ा बुरा सा बिहेवियर किया गया। ठीक है, उसको इंसल्ट किया गया। तो अब जो इंडिया में मुस्लिम्स थे, अब आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है, द मुस्लिम्स हु वर देयर इन इंडिया। अब देखा जाए तो वो टर्की कितनी दूर का कंट्री है। आपने, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द एटलस ऑल्सो टुडे। इंडिया के साथ पहले तो पाकिस्तान वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, फिर ईरान है, इराक है, गल्फ कंट्रीज हैं, उसके बाद जाके टर्की आता है। टर्की मतलब लाइज इन बिटवीन यूरोप एंड एशिया वी कैन से। तो इतनी दूर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इट वॉज हार्डली रिलेटेड टू अवर कंट्री। ठीक है, तो बट इंडियन मुस्लिम्स एट दैट टाइम, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपना एक वी कैन से एजिटेशन सा स्टार्ट कर दिया, अपनी एक उनके खिलाफ खड़े हो गए कि भी जो ब्रिटेन है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में जीत चुका है, तो अब वो खलीफा के साथ बुरा बिहेवियर ना करे, तो उसके लिए एक बना ली उन्होंने खिलाफत कमेटी।
मतलब इंग्लैंड को इस बात का जोर देने के लिए भी आपने उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट ना करो, उनको इंसल्ट ना करो, उनको रिस्पेक्टफुली उनके साथ ट्रीटमेंट करो, ट्रीटी मतलब समझौता करो, एग्रीमेंट करो। तो इसके करके अपनी उन्होंने एक कमेटी बना ली, खिलाफत कमेटी। और वो खिलाफत कमेटी के 2 लीडर थे प्रोमिनेंट जो चला रहे थे वो, देयर नेम्स वर मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली जौहर। दे बोथ ऑफ देम वर ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। पॉपुलरली दे आर कॉल्ड अली ब्रदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इन्होंने वो बना ली 1990 में। तो वो जो खिलाफत कमेटी है, एक आपने याद रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी पीपल दे मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग कि खिलाफत कमेटी वाज मेड टू अपोज द ब्रिटिश। खिलाफत का मतलब होता है कि किसी को अपोज करना, किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वो खिलाफत कमेटी बनाई इसलिए कि वो जो खलीफा है जो वॉर में हार चुका है उसको दोबारा से खलीफा बना दिया जाए, उसको दोबारा से रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट किया जाए। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जो कुछ बाहर हो रहा है, दूसरे किसी इतनी दूर के कंट्री में हो रहा है, उसके साथ इंडियन मुस्लिम्स को क्या लेना देना था। बट स्टिल दे स्टार्टेड बिहेविंग इन देयर टिपिकल मुस्लिम ब्रदरहुड मैनर कि भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो हमने उसको ना कुछ उसके लिए खड़े हो जाना है। तो अब ये उनका टोटली एक उनका पर्सनल मैटर था ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। बट नाउ व्हाट डिड महात्मा गांधी डू, कमिंग टू द मेन थिंग। महात्मा गांधी को लगा कि अगर हम ये खिलाफत कमेटी वालों के साथ हो जाए, इनको अपने साथ ले ले, तो हम मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उस मूवमेंट का नाम रख देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट ना करना, नॉट टू हेल्प, नॉट टू कॉपरेट, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये उन्होंने सोच लिया। अब ध्यान से आपने याद रखना है कि खिलाफत कमेटी वाज मेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द designation या title of Khalifa. That was a Muslim issue. But Mahatma Gandhi thought that this opportunity can be used to unite the Hindus and Muslims of India to stand against the British. मतलब हिंदू कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा कर ले, सबको मिलजुल के ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाए, उनके खिलाफ एक मूवमेंट करें। और उस मूवमेंट का नाम रख दिया उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट Mahatma Gandhi was not, we can say, many people from within the Congress even, they were against this step of Mahatma Gandhi कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, उनका एक अलग से इशू है, उसको आप अपनी बात के साथ नहीं जोड़ सकते। बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन एंड ही वेंट अहेड ऑन हिज ओन। तो क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर बनते जा रहे थे तो पीपल वर फॉलोइंग हिम, उनकी बात को सच मान के लोग फॉलो करते थे। तो महात्मा गांधी जस्ट एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन कि मेरी तो फैन फॉलोइंग बहुत है, मैं जैसे कहूँगा लोग करेंगे वैसे ही। तो इस बात का फ़ायदा उठाया, मतलब एक पॉपुलर लीडर बन रहे थे तो फ़ायदा उठाया इस बात का, ठीक है। तो एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी, दैट वाज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये नॉन कॉपरेशन ही क्यों नाम रखा उन्होंने, तो इन 19, नाउ यू प्लीज सी इन दिस लास्ट हेडिंग, व्हाई नॉन कॉपरेशन। तो in 1909 Mahatma Gandhi he wrote one book, and the name of that book was this Hind Swaraj. Name of the book was, you can underline also, Hind Swaraj book, 1909. So in that book he wrote his ideas, his views कि भी how British government is surviving here in India. तो he felt कि भी British government could be able to rule India because Indian people were cooperating with them. कि अगर इंडियन पीपल डिड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश तो दे वुड नॉट बी एबल टू वर्क हियर, दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू रूल अवर कंट्री। क्योंकि वो तो जो ब्रिटिशर्स आए थे थोड़े से आए थे ना, बाकी तो इंडियन लोग ही थे। तो इंडियन लोग ही उनकी हेल्प कर रहे थे उनका काम करने में, अपने कंट्री के साथ वो नहीं खड़े हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हो रहे थे, तो अपने ही लोग नहीं ठीक कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ही फेल्ट कि भी ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सर्वाइविंग हियर। तो देन ही गेव दिस नेम टू दिस मूवमेंट कि भी हम नाम रख देते हैं नॉन कॉपरेशन, कि हमने कॉपरेट ही नहीं करना है। तो अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश पीपल विल नॉट बी एबल टू रूल हियर प्रॉपरली, टू गवर्न अस प्रॉपरली। किसी का साथ ही ना दो तो अगला काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब वो कैसे नॉन कॉपरेशन करना था, यू कैन सी दिस नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पेज के ऊपर यू कैन सी हियर वो नॉन कॉपरेशन कैसे था कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो इंडियन लोग हैं वो नॉन कॉपरेट करें। हाउ, कि जो इंडियन लोगों को वट एवर दीज टाइटल्स वर गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल का मतलब होता है
Harvinder ma'am, are you there now? I think she has entered. Anyhow, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी, जो लोग भी उनको सपोर्ट करते थे, इंडियन लोग उनकी हेल्प करते थे अपने ही कंट्री के खिलाफ जाकर के, अगेंस्ट जाकर के, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनको प्लीज कर वो पता लड़ते हैं कि हम 4 बार कैसे आए। मैम आप इसको हैंडल कर। यस हरविंदर मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों को ही कोई ना कोई प्राइज देती थी, कोई ना कोई इनाम देती थी। दैट वाज कॉल्ड टाइटल। जैसे आपने सुना होगा एट दैट टाइम किसी को कह देते थे राजा साहिब, या किसी को कह देते थे राय बहादुर, या किसी को सर का टाइटल दे देते थे, सर SIR वाला, सर मैडम वाला सर, राय बहादुर, इस तरह के अलग अलग उनको, जमींदार साहब, इस तरह के उनको मतलब एक थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते थे कि भी आपने हमारी मदद की है तो हम भी आपकी हेल्प करते हैं, या आपको ऑथराइज करते हैं, या आपको भी डेजिग्नेट करते हैं। तो गांधी जी सेड कि भी सबसे पहले तो लोगों को जो टाइटल मिले हुए हैं वो अपने टाइटल्स का सरेंडर कर दें, मतलब अपना टाइटल वापस कर दें, कहें कि भी हम नहीं लेते, हम नहीं आपकी बात को मानते, तो अपने टाइटल दे दें। या फिर और बोला कि धीरे धीरे जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपना कॉपरेशन करना बंद कर दें, मतलब अपने ऑफिस में जाना बंद कर दें। जब ऑफिस नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम डिसरप्ट होगा। देन जो पुलिस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, या कोर्ट्स में, जुडिशरी में काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब इन डिफरेंट कैटेगरीज whosoever was working along with the British government, महात्मा गांधी रिक्वेस्टेड या सुजेस्टेड दोज पीपल कि भी आप अपना अपना सब पीछे हो जाओ, डोंट हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आप पीछे हो जाओगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद सारा जो था ये इस तरह से नॉन कॉपरेशन चला। तो दिस you can see in this para, ये वाला second para. तो finally last line, Congress session in Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. Means Nagpur is the name of a place in Maharashtra. तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई। मीटिंग किस करके हुई? बिकॉज मैनी पीपल, मैनी लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस, दे वर नॉट सपोर्टिंग दिस आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी ने कह दिया और सारे मान गए। बहुत सारे लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि जो खिलाफत वालों के साथ मिलके आप कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो वो कौन से लीडर्स थे जो अगेंस्ट थे? एक थे चित्तरंजन दास, एक थे बाल गंगाधर तिलक, एक थे अपना CR दास करके एक थे, मोतीलाल नेहरू थे। ये कुछ खास लीडर्स थे, देवर अगेंस्ट महात्मा गांधी। तो मतलब आपस में इनका डिसरप्शंस चल रही थी, आपस में इनका डिसएग्रीमेंट था। तो फिर कर करा के मिलजुल के फिर बात करके 1920 में दिसंबर मंथ नागपुर प्लेस में वहाँ सेशन का मतलब मीटिंग हुई, सारे लोग कांग्रेस के मिले, मीटिंग करके फिर सलाह बनी कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। Otherwise, many people were not happy with this step of this move of Mahatma Gandhi. But anyhow, this movement started. तो उसी का फिर नाम रख दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, now coming to next page, you can see in the first line of your this page, the non cooperation खिलाफत movement began in January 21. You can underline also. ठीक है, तो जनवरी 21 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है जी। अच्छा, अब है कि अब हाउ डिड दिस मूवमेंट गॉट एग्जीबिशन, कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, कैसे अनफोल्ड हुई। अगर मूवमेंट है तो क्या किया गया उस मूवमेंट में। ठीक है, तो उस मूवमेंट में नाउ यू सी पॉइंट 2.1, हेडिंग 2.1, 2.2, अगले पेज पे आ जाएगा 2.3, ये सारे ऑल दीज आर रिलेटेड टू दिस अनफोल्डिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि भी क्या क्या किया गया। So now one by one we have to undertake all these points, but now its time is hardly 2 minutes are left. ठीक है, 2 minutes, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटे? I think few minutes are there. Anyhow, we can do. So first of all, we have to start with this movement in the towns. Towns क्या होते हैं? Towns means those areas which are neither totally a village nor totally a city. In between जो होते हैं, some features of village type features are found and some urban city like features are found. In between जो place होता है थोड़ा सा less developed, तो वहाँ पे उसको कह दिया जाता है towns में। तो यहाँ पे heading के लिए town लिखा हुआ है, otherwise cities भी we can say here. तो अब cities में लोगों ने क्या किया? Please see the first para.
तो सिटीज़ में जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट्स थे, तो मिडिल क्लास भी आ जाते हैं, खास करके स्पेशली स्टूडेंट्स जो थे या टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे स्कूल्स और कॉलेजेस में, उन्होंने अपने अपने स्कूल का, अपने अपने कॉलेज का, अपने अपने इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट कर दिया कि हमने वहाँ नहीं जाना है। ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस विच वर रन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्कूल कॉलेजेस, उनको बाइकआउट किया। बाइकआउट का मीनिंग होता है, यू कैन रीड कि भाई फेवर ना करना या उनको फॉलो ना करना, ठीक। तो उसके बाद जो काउंसिल इलेक्शंस थी, जो काउंसिल इलेक्शन का मतलब जैसे आजकल हम बोल सकते हैं इन सिंप्लीफाइड मैनर वी कैन से, जैसे आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में चल रही हैं, तमिलनाडु में, असम में इलेक्शन चल रही है ना, तो ऐसे ही उस समय थी काउंसिल इलेक्शंस। तो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करना, लॉयर्स जो थे वो अपना कोर्ट में जाना उन्होंने बंद कर दिया, टीचर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो भी खास करके जुडिशरी के कामों में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, इंडियन लोग, उन्होंने वो सारे काम बंद कर दिए। तो और साथ ही कहा कि हम लोग जो काउंसिल की इलेक्शन है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खड़े ही नहीं होंगे, अपना इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर भी जो था एक मद्रास, जो प्रेजेंट तमिलनाडु की है कैपिटल है, वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट जाके अपनी एक बना ली, महात्मा गांधी के अगेंस्ट जाके दे मेड देयर जस्टिस पार्टी, अपनी अलग पार्टी एक बना ली, जस्टिस पार्टी, और कहा कि हम नहीं गांधी की बात को फॉलो करते, हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जबकि रेस्ट ऑफ कंट्री में लोगों ने बाइकआउट किया इलेक्शंस का, बट वो जस्टिस पार्टी के लोगों ने उसके फॉर्म जो बनाने वाले थे, फाउंडर्स थे, देवर दिस हियर इट इज़ नॉट गिवन बट अदरवाइज दे वर चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस में। उसके बाद है नेक्स्ट पैरा में, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जो भी फॉरेन से सामान आता था, स्पेशली फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज दे वर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड ओनली। इंडिया में जो भी चीज़ें आती थी दे वर कमिंग ओनली फ्रॉम इंग्लैंड, मेनली फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि उनका रोल था तो वो अपनी कंट्री से जो फिनिश्ड गुड्स होती थी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीन मेड गुड्स, वही यहाँ पर बेचते थे, आके इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है। तो उनको लोगों ने बाइकआउट कर दिया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, यू कैन रीड द मीनिंग ऑफ द टर्म पिकेट। पिकेट का मतलब होता है जब कोई लोग किसी कोई शॉप हो या कोई प्लेस हो, उसका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, उसको खुलने नहीं देते किसी दुकान को, तो दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिकेट। तो जो लिकर शॉप्स थी, अल्कोहल की शॉप्स थी, तो वहाँ पर खड़े हो गए, उनको बंद करवा दिया और दुकानों को बंद करवा दिया। एंड फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पोर्ट था वो तकरीबन हाफ हो गया, मतलब फॉरेन से आने वाले क्लॉथ को भी लोगों ने क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन उसके साथ कर दिया कि भी हमने फॉरेन का बना हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। तो फिर क्या करना है, फिर एट दैट टाइम यू वुड बी रिमेम्बरिंग महात्मा गांधी की, जब भी आप कोई पिक्चर देखते हो, फोटो देखते हो, तो अलॉन्ग विद चरखा, तो गांधी जी प्रमोटेड द यूज ऑफ खादी एट दैट टाइम, भी हाथ से चरखे से खादी बनाओ और उसका कपड़ा बना के पहनो। तो लोगों ने उसको फॉलो किया और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े का भी बाइकआउट किया, सामान का भी बाइकआउट किया। देन लास्ट पैरा में अब है कि जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो एक पॉइंट आ जाता है कि ठीक है, टू टू सम एक्सटेंट तो ये चीज़ें करी जा सकती हैं, बट फॉर द लॉन्ग रन ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, अभी व्हेन दिस कोरोना स्टार्टेड तो लॉकडाउन किया गया है ना, थोड़े समय के लिए स्ट्रिक्टली इट वाज फॉलोड, बट स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर सम टाइम व्हाट वाज डन, अब सारे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज फॉर अनलिमिटेड टाइम तो लॉकडाउन करके नहीं ना रह सकते, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी हो, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर वो लॉकडाउन को खोला गया, ओपन किया गया, है ना। तो ऐसे ही जब लोगों ने देखा कि अगर हम ऐसे बाइकआउट करके बैठ जाएंगे, इफ वी डोंट कोऑपरेट, तो अप टू विच टाइम, सारी उम्र तो नहीं बच्चे घर पे बैठ सकते, सारी उम्र तो नहीं लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठ सकते, तो टू अप टू विच टाइम दे हैव टू डू ऑल दिस नॉन कॉपरेशन। तो अल्टीमेटली दे वर नॉट हैविंग ऑल्टरनेटिव्स टू देम। एक तो होता है ना, वी कैन बाइकआउट एनीथिंग, बट ऑन द अदर साइड वी शुड हैव सम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑल्सो विद अस टू गो टू दैट साइड। तो जब देर वॉज नो फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और एक तरफ के सारे कामों को हमने बाइकआउट कर दिया, तो पीपल वर फेसिंग इन जनरल सोसाइटी, पीपल वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स, स्कूल नहीं है ऑल्टरनेटिव, कोई जुडिशरी का सिस्टम नहीं रहा, कोई मार्केट का सिस्टम नहीं रहा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे फिर इन टाउन्स वो स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ओनली, मूवमेंट इन द टाउन्स।
So its time is also going to be over. So I want to conclude here. ठीक? And today's your homework is to read up to this part. Okay, the rest we do tomorrow. So Harvinder ma'am, now you can please end the meeting. Harvinder ma'am, you can end the meeting now.